So we will discuss today biostatistics chapter, introduction to regression in biology. Actually, regression is a statistical method. It is a very powerful statistical method which helps biologists to understand and predict relationship between variables. So if you have two variables, for example, one is x and one is y. You have two variables, one is x, one is y. Now this regression will tell you with some formulas and calculation whether if x changes, y will also change or not. So, or if y changes, if x changes or not. But if you have here, you have to fix one thing. One should be independent and one is dependent. So independent is x, you are holding x as independent and y as dependent, because x, you want to see if x changes, y changes, or if y changes or not. So x is the one in when you are x is the one you are investigating if y changes. So therefore we will come to this part. So here essentially you understand whether two variables are related or not. So as per definition, regression, it is a statistical approach that examines the relationship between variables. I just told right now. It helps us understand how changes in one variable, for example, assume plant ka height, how it will relate with another variable like flower ka count of the flower. If the tall plants have more flower or less flower or the same number of flowers, it doesn't matter. So this is what the height of the plant, if it has got effect on the number of flowers. So this method will allow biologists to quantify, एक नंबर दे सकता है कि एक रिलेशनशिप को, जैसे मुंह में बता, अरे वो लंबा है उसीलिए उसमें ज़्यादा फूल हो रहा है, हाँ वो नाटा है उसीलिए फूल कम हो रहा है, अरे लंबा हो या नाटा हो फूल तो एक ही दो देगा, हाँ ऐसे देख के बोलने से कुछ होता नहीं है, तुमको एक कैलकुलेशन करके एक नंबर देना पड़ता है. यही पूरा स्टैटिस्टिक्स का मतलब मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का यही फ़र्क है. स्टैटिस्टिक्स is a mathematical tool. It's a mathematical tool which will give you some confidence on what you observe. Your counting in mathematics has got no value until or unless you have a mathematical क्वांटिफिकेशन. अगर तुम्हारा स्टैटिस्टिक अगर तुमको अगर नहीं बोलेगा कि इतना % मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि तुम जो गिने हो वही यही वो है, एनी टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स यू हैव लॉट्स ऑफ नंबर्स, या देख के नंबर गिन के तुमको लगेगा कि अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो ख़ास कुछ वो इजीली पता चल जाता है, लेकिन हल्का फुल्का अगर डिफरेंस है, हाँ कि इसमें कुछ फ़र्क हो रहा है या नहीं, इसके लिए तुमको स्टैटिस्टिक्स चाहिए. इसीलिए स्टैटिस्टिक्स करते हैं. बायोलॉजी में तुम जितना भी एक्सपेरिमेंट्स तुम करोगे, हाँ उसको अगर वो वाकई वो कोई चेंज है या नहीं है, इसको तुम न्यूमेरिकली बताना पड़ेगा. न्यूमेरिकली किस तरह से बताओगे? स्टैटिस्टिक्स से. स्टैटिस्टिक्स तुमको ये टेस्ट का एक वैल्यू देगा. अच्छा, सुनाई दे रहा है तो तुमको? यस सर. हाँ ठीक है. अच्छा, सो उसमें एक वर्ड नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग, दैट इज लीनियर रिग्रेशन. लीनियर मतलब सीधा. whenever we call about linear, it means a straight line. So straight line, you are assuming a relationship in a straight line. Two variables x and y. X can have any value on the x-axis horizontal, y can have any value on the y-axis vertical.
लंबा और एक है साइड में सोया हुआ। हाँ, तो दोनों जो वैल्यूज़ को एक लाइन से x का वैल्यू और y का वैल्यू तुम लाइन से खींच के एक स्ट्रेट लाइन बना दिए हो, x और y का एक वो स्ट्रेट लाइन बना दिए हो। ठीक है ना, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय लीनियर। सो लाइन का स्लोप चेंज हो सकता है। स्लाइडिंग स्लोप मतलब जो स्लाइड करते हो, ढाल। तुम्हारा अगर ढाल बढ़ जाता है या ढाल घट जाता है या लाइन लंबा हो जाता है, लाइन छोटा हो जाता है। हाँ, ये पिक्चर ग्राफ देख के यू कैन गेट टू नो वेदर देर इज़ अ रिलेशन, एक्स चेंज होने से वाई चेंज होगा या नहीं, प्लांट हाइट चेंज होने से नंबर ऑफ फ्लावर्स चेंज होता है या नहीं। हाँ, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय लीनियर। And regression is the modeling. So how one variable y depends on or is explained by another variable x. वही जो मैं बता रहा हूँ, x y किस तरह से चेंज हो रहा है x के ऊपर, वो लाइन का ढाल से पता चल जाता है। वो लाइन का स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज़ द इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन। ये मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़े हो। Yes, if you have studied mathematics, y is straight line का इक्वेशन है, y is equal to mx plus c. So ये this is a straight line equation on a graph x और y axis के लिए। हाँ, and now simple linear regression जैसे हम लोग का तुम्हारा सिलेबस में है, we will work just दो वेरिएबल, a predictor variable which we used to make a prediction and a response variable that we are trying to predict। जैसे प्लांट हाइट के ऊपर नंबर ऑफ फ्लावर्स डिपेंड करता है या नहीं। सो फर्स्ट इज द प्रेडिक्टर वेरिएबल x, नेक्स्ट इज द रेस्पॉन्स। प्रेडिक्टर वेरिएबल प्लांट का हाइट, हाँ, y होगा या नहीं होगा, और उसका रेस्पॉन्स है, x को बढ़ा दिया, y क्या बढ़ गया या y घट गया, वो उसका रेस्पॉन्स है। एक्चुअली प्रेडिक्ट कर रहे हो कि x का हाइट बढ़ा दिए हो। सो कुछ की रिग्रेशन टर्म्स और एब्रीविएशंस के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट इज एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे बोलते हैं प्रेडिक्टर। दिस इज द वेरिएबल वी यूज टू मेक प्रेडिक्शंस। इन आवर एग्जाम्पल, एक्स रिप्रेजेंट्स द प्लांट हाइट measured in centimeter. It is called independent because we assume it is not affected by other variables in our model. मतलब प्लांट हाइट मतलब नंबर ऑफ फ्लावर बढ़ गया तो प्लांट का हाइट घट गया, हम लोग ऐसे एज्यूम नहीं कर रहे हैं, समझे ना। मतलब तो तब तुम इसको उल्टा कर दिए हो एकदम। हाँ, तुम उल्टा कर दिए, तुम करो प्लांट का हाइट ज़्यादा होने से फ्लावर ज़्यादा होगा या कम होगा या सेम होगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तुम्हारा क्वेश्चन ये नहीं है कि इसमें ज़्यादा फ्लावर हो रहा है इसीलिए इसका हाइट लंबा है या कम है या नॉर्मल है। इट इज़ नॉट योर क्वेश्चन, तुम एकदम उल्टा कर दिए हो। वो तब वो तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हारा हाइपोथेसिस उल्टा हो गया, इट इज़ डिफरेंट, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है तुम्हारा हाइट बढ़ने से तुम्हारा फ्लावर हो रहा है क्या नहीं। फ्लावर इज डिपेंडेंट, हाँ, नंबर ऑफ फ्लावर एक्स के हाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। तुम पकड़ लियो नल हाइपोथेसिस में कि इट इज़ डिपेंडेंट, नथिंग चेंजेस। वो नल हाइपोथेसिस इसमें होता नहीं है, लेकिन पकड़ लो। सो एक्स इज द, फिर यू हैव द वाई विच इज़ द डिपेंडेंट और रेस्पॉन्स वेरिएबल। इसी को तुम जो प्रेडिक्ट करना चाहते हो, यू आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट इफ नंबर ऑफ फ्लावर बढ़ता है या नहीं घटता है, दैट इज व्हाट यू वांट टू सी। सो वाई इज द नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन ईच प्लांट, इट्स डिपेंडेंट बिकॉज इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन एक्स। नेक्स्ट चीज होता है स्लोप, वो ढाल। दिस स्लोप टेल्स अस हाउ मच वाई चेंजेस व्हेन एक्स इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। से तुम्हारा अगर एक्स एक्सिस में तुम दाहिने तरफ बढ़ना चालू कर दिए हो, हाँ, उसके हिसाब से तुम्हारा अगर वाई क्या बढ़ रहा है या वाई से एक्स तुम्हारा 2 में है, वाई भी 2 में है, 0.2, ऊपर में 2 है, साइड में भी 2 है,
अब तुम्हारा 2 हो गया 3, 1 यूनिट बढ़ गया। अब 3 में अगर y भी अगर वो 3 में आ गया, उसका मतलब x के साथ y चेंज हो रहा है, वो स्लोप सेम रह रहा है, मतलब ढाल सेम हो रहा है। 3 और 3 x और y का ज्वाइन करोगे और 2 और 2 x और y का जो ढाल सेम रह रहा है। लेकिन अगर y 2 में ही रह गया है, हाँ, और x 3 में चला गया, तो क्या हो गया, ढाल कम हो जाएगा ना, ढाल कम हो जा रहा है। इसका मतलब है कि y तो भाई चेंज नहीं हुआ, x चेंज हो गया। तो ये लाइन से तुमको ढाल देख के तुमको पता चल जाता है कि कहाँ पे ये मतलब तुम्हारा लाइन का मतलब तो x और y का क्या क्या रिलेशन है, ढाल देख के ही पता चलता है। स्लोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरसेप्ट बोलते हैं। इंटरसेप्ट होता है जहाँ पे, हाँ, वाई एक्सिस में लाइन कहाँ पे वाई एक्सिस में हिट करता है, वाई एक्सिस में लाइन का किस पॉइंट पे हिट करता है। जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस में हिट करता है, वाई का वैल्यू क्या है उस समय, x तो 0 में है, नीचे में 0 है, y का वैल्यू 2 है या 4 है या 8 है, वो लाइन का ढाल उसमें पता चलता है। इंटरसेप्ट बोलते हैं कहाँ पे x एक्सिस y को हिट करता है। हाँ, दैट इज़ एग्जैक्टली एट द पावर, मतलब जिसमें है द इंटरसेप्ट इज़ द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 0। x 0 मतलब एकदम y एक्सिस जहाँ से शुरू होता है, नीचे से y का वैल्यू क्या है वो सेम है, जो इंटरसेक्शन है। अब इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और यू कैन कॉल इट mx प्लस सी, जो भी मतलब वॉट एवर यू गिव, बेसिक इक्वेशन यही है। अच्छा, कंपोनेंट्स क्या है, कंबाइंड इंटरसेप्ट एंड स्लोप विद x वैल्यूज। सो ये लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इज द फंडामेंटल फॉर्मूला। y रिप्रेजेंट्स आर प्रेडिक्टेड y वैल्यू लाइक नंबर ऑफ फ्लावर, a इज द इंटरसेप्ट, मतलब या c इज द इंटरसेप्ट, mx प्लस c अगर देखोगे c इज द इंटरसेप्ट, ठीक है, वेयर द लाइन क्रॉसेज द y एक्सिस, b इज द स्लोप, हाउ स्टीपली लाइन, स्लोप कैसे पढ़ा, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज जो है परपेंडिकुलर बाई बेस, हाइपोटेन्यूज होता है, x और y का वैल्यू डिवाइड करोगे तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ b। The simple equation allows us to estimate the exact expected number of flowers for any plant height once we determine the values of a and b from our data. So तुम्हारा x और y का वैल्यू से, हाँ, तुम a और b मिल जाएगा तुमको, और a और b अगर मिल जाएगा तो तुम्हारा लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि x और y का डेटा तुम्हारे पास है, तुम ऑब्जर्व काउंट किए हो, हाइट मेजर किए हो, हाँ, x और y का वैल्यू है। सो तुमको कैलकुलेट करना है a और b, और a और b क्या गड़बड़ करता है उसको तुमको देखना है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप सिंपल बायोलॉजी एग्जाम्पल। डिफाइन योर रिसर्च क्वेश्चन, वी वांट टू डिटरमिन, क्वेश्चन आया, वी वांट टू डिटरमिन इफ टॉलर प्लांट्स प्रोड्यूस मोर फ्लावर्स। हाँ, ये परफेक्ट क्वेश्चन फॉर लीनियर रिग्रेशन है, क्योंकि वी हैव अ क्लियर प्रेडिक्टर वेरिएबल हाइट एंड द रिस्पॉन्स वेरिएबल जो है फ्लावर काउंट। सो डेटा कलेक्ट किए हो, वी मेजर द हाइट इन सेंटीमीटर्स एंड काउंट द फ्लावर्स फॉर 5 डिफरेंट प्लांट्स, 5 प्लांट लिए हो, ईच प्लांट गिव्स अस 1 डेटा पॉइंट विद x वैल्यू, हाइट, और उसका फ्लावर भी काउंट किए हो और एक y वैल्यू मिला है, 5 फ्लावर का हाइट मिला है, 5 प्लांट का एक हाइट मिला है, और कितना फ्लावर एक एक में है तुम काउंट किए हो, ठीक है। नाउ वी विल यूज रिग्रेशन एनालिसिस टू डिटरमिन इफ देर इज अ कॉन्सिस्टेंट पैटर्न बिटवीन प्लांट हाइट एंड फ्लावर प्रोडक्शन। हाइट के साथ फ्लावर का कोई रिलेशन है या नहीं, हमको अब पता करना है। तो ये तुम्हारा सैम्पल डेटा टेबल है,
प्लांट 1 2 3 4 5 है, हाइट एक का 10 15 20 25 30 सेंटीमीटर है। हाँ, और तुम देखे हो कि फ्लावर्स वाई में पहले 10 सेंटीमीटर में 3 फ्लावर है, 15 सेंटीमीटर में 5, उसके बाद 8, 25 में 10 और 30 में 12। So this table shows our collected data for 5 plants. For each plant we have recorded 2 measurement. एक है उसका height x और एक है y जो number of flowers. तो रॉ डेटा देख के तुम ऑलरेडी तुमको पता चल रहा है कि एक ये ड्राइंग करके देखो ऐसे ही है। रॉ डेटा में ऑलरेडी देख के पता चल रहा है कि टॉलर प्लांट में ज़्यादा फूल है। हाँ, plants ranging from 10 centimeter to 30 centimeter in height with flower counts ranging from 3 to 12। तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या करेगा, ये जो एक कितना अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हाँ, वो यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस। तो पहले तुम एक स्कैटर प्लॉट बना सकते हो। ऊपर में पिक्चर देखो, स्कैटर प्लॉट, हाइट एक लाइन, हाँ, प्लॉट हाइट और फ्लावर काउंट एक वाई में तुम ये बनाए हो। फिर स्कैटर प्लॉट बना के तुम ये रेडी, मतलब तुम जो वो जो पॉइंट्स, सब पॉइंट्स कहाँ है तुम ज्वाइन करके स्कैटर पॉइंट्स प्लॉट से तुमको पता चल रहा है। फिर डॉट्स इन आवर प्लॉट, ये ऊपर देखो, ये डॉट, फिर ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये सब डॉट्स कहाँ क्या कर रहा है। Then preparing for regression, so you have to plot the data, visualize all data points on a coordinate system। तुम ग्राफ में सब पॉइंट, हाइट और ये इसको तुम एक डॉट 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 करके तुम ऐसे एक बना लिए हो। देखो ऐसे एक बना लिया। ये नीचे प्लांट्स ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है, ये स्टाइल मार दिया। हाँ हाँ, वो स्कैटर प्लॉट बना दिए हो तुम। प्लॉट द डेटा, फिर कैलकुलेट बेस्ट फिट, सब लाइन ड्रॉ करके बेस्ट फिट, उसके बीच से तुम एक लाइन ड्रॉ कर तुम बना रहे हो, बेस्ट फिट उसे कहते हैं। ठीक है ना, ये मतलब डिफरेंट जगह पे बीच से बेस्ट फिट लाइन, मतलब सब पॉइंट के थ्रू से जाना नहीं है, लेकिन सब लाइन के बीच से जाना चाहिए, सब पॉइंट्स लाइन के आसपास ही रहना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि वो मतलब एक पॉइंट 500 मीटर दूर है, एक पॉइंट मतलब और नीचे और 500 मीटर दूर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लगभग आसपास होना चाहिए। ठीक है ना, बेस्ट फिट मतलब लाइन के अंदर बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। एक तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो स्टैंडर्ड कर्व ड्रॉ करोगे तो जो भी तुम्हारा वैल्यू आएगा उसके बीच से तुम एक लाइन ड्रॉ करते हो बायोकेमिस्ट्री में, दिस इज़ लाइक दैट, उसे कहते हैं बेस्ट फिट। फिर ड्रॉ द लाइन एंड इवेलुएट फिट। द लीस्ट स्क्वायर मेथड फाइंड्स द लाइन दैट मिनिमाइजेस द स्क्वायर्ड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन डेटा पॉइंट्स। तो इसको हम लोग समझते हैं। अब तुमको स्लोप कैलकुलेट करना है। फाइंड द मीन ऑफ एक्स वैल्यूज़ एंड द मीन ऑफ वाई वैल्यूज़, एक्स और वाई का मीन तुम निकाल लिए हो। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला डाल दिए हो एंड यू सब्ट्रैक्ट मीन फ्रॉम इंडिविजुअल। फाइंड डिविएशन मतलब x माइनस एक्स बार, मीन से कितना डिविएट कर रहा है। ठीक है, फिर b इज इक्वल टू ये फॉर्मूला तुम डाल रहे हो, x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई वाई माइनस वाई बार, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स बार। सिग्मा, दोनों में सिग्मा है, पहले प्लॉट, सेकंड प्लांट, थर्ड प्लांट। फर्स्ट प्लांट में मीन के साथ कितना डिविएशन है, हाँ, और फ्लावर काउंट में कितना, फ्लावर काउंट के मीन के साथ कितना डिविएशन है, उसका तुम ये मीन बनाए हो डिवाइडेड बाई उसका स्क्वायर, ये है b का वैल्यू। So this ये कॉम्प्लेक्स है बट इट इज सिंपली मेजर्ड हाउ y चेंजेस रिलेटिव टू x। देखने में कॉम्प्लेक्स है लेकिन तुम ये पिक्चर देखने से पता चल जाएगा। तुम इसको अगर प्लॉट करोगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करोगे, हाँ, ये पिंक लाइन डिवाइडेड बाय ग्रीन लाइन करोगे
हाँ, तो तुम्हारा ये स्लोप का बी मिल जाएगा, समझे ना। बी होता है बिगिन, 1 से स्टार्ट हो रही है। फिर तुम मीन वैल्यूज़ को यूज़ किया, अप्लाई फॉर्मूला, कैलकुलेट y इज इक्वल टू वाई माइनस बी एक्स। फिर वो रिज़ल्ट को तुम इंटरसेप्ट का फॉर्मूला निकाल लिए हो, ठीक है ना। ये देखो फॉर्मूला दिख रहा है तो हाँ। फिर स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा इसका एवरेज हाइट तुम x का क्या निकाले हो, एवरेज हाइट 20, एवरेज फ्लावर का कितना निकालो 7.6 फ्लावर्स, हाँ। और कैलकुलेटेड स्लोप वो फार्मूला में डाल के 0.45, और कैलकुलेटेड इंटरसेप्ट वो फार्मूला में डाल के -1.4। ओके, तो ये तुम्हारा ए वाला थोड़ा समझ में नहीं आया सर, इंटरसेप्ट वाला ए कैसे निकालना है? इंटरसेप्ट मतलब ये जो लाइन है तुम देख रहे हो, ब्लू लाइन, वाई में कहाँ कौन सा पॉइंट पे मार रहा है, दैट इज द इंटरसेप्ट। बस वो जहाँ पे टच करेगा वही पॉइंट। हाँ, दैट इज इंटरसेप्ट। when x is equal to value of y when x is equal to 0, ठीक है ना, that is the intercept। यहाँ पे मैं दिखाया, ये एब्रीवेशन, intercept starting point, intercept is the value of y when x is equal to 0। Yes, sir. फिर स्लोप में b आया 0.45, इंटरसेप्ट में -1.4, हाँ, मतलब नीचे जा रहे हैं लाइन के -1 पर, मतलब नीचे आ रहे हैं, माइनस y में माइनस जा रहे हैं, मतलब x के 0 पॉइंट के नीचे से काट रहा है, इंटरसेप्ट a माइनस। तो फाइनल आवर रिग्रेशन इक्वेशन जो -1.4 प्लस 0.45x, where y is the predicted number of flowers and x is plant height in centimeter. This equation captures the positive relation between plant height and flower production. ये है तुम्हारा फाइनल तुम्हारा रिजल्ट। उसका मतलब ये तुम्हारा जब ये रिजल्ट आ रहा है, तुम ये लाइन, ये इक्वेशन तुम ड्रॉ किया, -1.4 मतलब नीचे जा रहा है, मतलब स्लोप चेंज हो जा रहा है, हाँ, स्लोप खास चेंज, मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया y के साथ, मतलब पॉजिटिव बढ़ रहा है। ये देखो ये वो लोग ड्रॉ किए हैं, plant height versus flower count. So using this model for prediction, identify question, how many flowers would we expect on an 18 centimeter tall plant? तो ये फॉर्मूला जो तुम निकाले हो, use the equation, calculate the result, 6.7 फ्लावर तुम एक्सपेक्ट करोगे। ये लाइन से तुम you can then you can use this and you can calculate कितना फ्लावर हो सकता है। ये तुम इसमें भी तुम लोग करते हो बायोकेमिस्ट्री में, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, तुम लोग का बायोकेमिस्ट्री तो हो गया ना, स्टैंडर्ड कर्व बनाए थे तुम, नॉन कॉन्सेंट्रेशन में नॉन ओडी वैल्यू तुम लिए हो, बीच से तुम एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ किए हो, ठीक है ना। फिर ये इक्वेशन तुम बनाए हो, अब इस इक्वेशन के हिसाब से, हाँ, तुमको एक अननोन प्रोटीन का सैंपल आ गया, एक अननोन वाई वैल्यू तुमको दे दिया गया है, ठीक है ना। तुम उससे यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट व्हाट इज एक्स, मतलब व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन। तुमको अननोन प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेटेड मालूम नहीं है, तुम वो प्रोटीन मेजर के इतना ओडी मिला, तो ऐसे तुम्हारा इक्वेशन है, तुम्हारा ये ओडी, तब तुम ये इक्वेशन में डाल के यू कैन गेट व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोटीन। ये प्रेडिक्शन में काम में आएगा रिग्रेशन, समझे ना। फर्स्ट इज मेकिंग दैट इक्वेशन, तुम्हारा डेटा देख के तुम इक्वेशन बनाओगे, फिर वो इक्वेशन बना के तुम देखोगे लाइन चेंज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन तुम बना लिए। अब उस लाइन में, उस रिग्रेशन लाइन में तुम्हारा कहाँ पे तुम्हारा वैल्यूज़ है,
सो रिलेशनशिप तुम्हारा बन गया, अब उसके अंदर से यू आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट कि रफली यहाँ पे 7 ये हो रहा है. सो प्रेडिक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एस्पेक्ट ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस. हाँ, पहले तो तुम्हारा लाइन ड्रॉ करना है. मेरे विचार में एग्जाम में रिग्रेशन नहीं आएगा. हाँ, क्योंकि कुछ बायोलॉजिस्ट को तुमको रिग्रेशन का इक्वेशन दे के तुमको ये बनवाना पड़ेगा. मेरे विचार में शायद ये नहीं आएगा. लेकिन ये अगर दे दिया तो यू कैन नॉट ब्लेम मी, क्योंकि सिलेबस में तो है. अभी तक आया नहीं है. कोरिलेशन का आया है, टी टेस्ट आता है, हाँ, तुम्हारा काई स्क्वायर टेस्ट आता है, एनोवा आता है. बहुत बायोलॉजिस्ट लोगों को, मतलब हम लोग के कोई पेपर सेटर को एनोवा बहुत इम्पोर्टेंट लगता है. एनोवा आता है. आप एनोवा को टेल ही नहीं करवाया. वन टेल ही है, मैं सिलेबस देखा हूँ, 2 टेल नहीं है. तो सर उससे भी मुझे क्वेश्चन भेज दीजिए, एक बार सॉल्व कर लेंगे. हाँ हाँ, दे दूंगा. तो ये है तुम्हारा रिग्रेशन बायोलॉजी, ठीक है ना.